Very good morning, dear students. Myself, Mrs. Tikita Mekwan, presenting to you Standard 7 Social Science, and today we'll learn about our new chapter 3 Government. In this chapter, we'll learn about how our government formed, what is the function of the government, and the committee, which are the assembly work, that all we'll learn in this chapter. Now here you can see some newspaper headlines. We can everyday newspaper we are coming to know that right to information, RTI, GST, more and more information we are getting from newspaper. You must have come across the word government in newspaper, radio and TV. What is government? The functions does it perform and what is its importance in our lives? We will study about the government in this lesson. You must be aware that a country needs a government to make laws as per its constitution, take decisions and implement them. For example, where should schools and roads be constructed? Should the rates of different commodities be increased or decreased? How to ensure that electricity is supplied to everyone? Decisions such as these are usually taken by the government. Thus, the government performs a very important function. We come to know about the government's work through the media. Okay, now in this chapter, we are going to learn about government, how the government working. जो ऐसे तो हम न्यूज़पेपर, रेडियो और टीवी में गवर्नमेंट के बारे में सुनते ही आए हैं, उसका इम्पोर्टेंट क्या है वो भी हम आज इस लेसन में पढ़ेंगे। क्यों एक कंट्री को हमेशा ही गवर्नमेंट चाहिए? उसके लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो कोई डिसीज़न है उसमें इम्प्लीमेंट करना है, मीन्स कुछ बढ़ोतरी करनी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्कूल और रोड कहाँ बनने चाहिए, डिफरेंट कमोडिटीज़ मीन्स जो चीज़ें हम तक पहुंचती है उसके प्राइस बढ़ने चाहिए या घटने चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी सब तक पहुंचनी चाहिए। तो ये सब जो डिसीज़न है वो गवर्नमेंट के थ्रू लिए जाते हैं, इसलिए गवर्नमेंट एक इम्पोर्टेंट काम है जो करते हैं हमारे लिए। गवर्नमेंट का जो भी काम है वो मीडिया के थ्रू हम तक पहुंचता है। Now there is an activity for you that read the headlines of a newspaper, make a list of work done by the government on the basis of your list. Do you understand the different function of government? ये एक एक्टिविटी है जो आपको परफॉर्म करनी है। Let's see the functions of the government. The government is like managing committee. Usually in a democracy, the government works as per the wishes of the people and for their welfare. The government also takes various steps to solve the economic and social problems of the people. It is concerned about the nation's economic condition and problems of poverty, unemployment, literacy, health, etc. It is also provides various facilities like making low price food grains available through ration shops, assistance during disaster and calamities, establishing educational institutions and hospitals, and runs services like transport, judiciary, post and telegraph, railways, etc. The government also maintains friendly relationship with their other countries. गवर्नमेंट एक ऐसी चीज़ है जो एक मैनेजिंग कमिटी है जो हम चूज करते हैं बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. इट इज़ अ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी इज़ अ हाई वर्ड टू अंडरस्टैंड फॉर यू. डेमोक्रेसी मीन्स हमारे द्वारा जो चुने गए नेता है उनकी एक कमेटी हम बनाते हैं और जो हमारी विश है, जो हमारी ज़रूरत है उसके हिसाब से वो पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक के अच्छा काम करने के लिए वो काम करते हैं, उसे गवर्नमेंट कहते हैं. ओके जैसे कि हमारी प्रॉब्लम्स है जो इकोनॉमिक है या सोशल प्रॉब्लम्स है वो भी वो वेरियस स्टेप्स लेते हैं जो गवर्नमेंट कमिटीज़ है वो. एंड देन प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी जो गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट, लिटरेसी, हेल्थ, सभी के लिए वो वेरियस स्टेप्स लेते हैं. फैसिलिटीज़ जैसे कि स्कूल है, हॉस्पिटल्स है वैसे बंधवाना, देन
प्राइस लो करना, सभी ग्रेन्स की, फूड की, रेशन शॉप में सभी को वो अवेलेबल करना। तो ऐसे गवर्नमेंट सभी फैसिलिटीज़ देता है, ट्रांसपोर्ट की, जुडिशरी की, अगर किसी को कोई इश्यू हुआ है तो वो कोर्ट में जाके उसकी सुलह कर सकते हैं। देन पोस्ट, टेलीग्राफ एंड रेलवेज, सो मोस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट are maintained by governments, and they also keep friendly relations with other countries also. Let's see the importance of the government. The government is necessary to ensure that the law is same for everyone. It frames laws and sees that it is implemented by the concerned authorities and the police. A very important function of the government is to make rules and regulations whenever there is a public gathering. The government thus plays a vital role in maintaining law, order and peace, and also ensure the development of the nation. ओके तो गवर्नमेंट एक नेसेसरी चीज़ है जो करती हैं कि लॉ है, जो कायदा है वो सभी के लिए एक जैसा है। गवर्नमेंट के लॉ वो फ्रेम करती हैं और सभी अथॉरिटीज़ जैसे कि पुलिस है वो लोग हैं तो उसके हिसाब से हमें वो प्रोवाइड करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करवाते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट बहुत ही एक अच्छा सा रोल प्ले करती हैं नेशन में पीस फॉर एंड लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए। The government at different levels. The government is responsible for providing various facilities in different fields. How does the government arrange for all this? India is a vast country. If the administration was centralized, many problems would arise and will cause inconvenience to the citizens will be inconvenienced. Therefore, our government works at different levels: local level, state level, and national level. गवर्नमेंट जो वेरियस फैसिलिटीज़ हमारे तक आती हैं कोई भी फील्ड में, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। तो गवर्नमेंट ये कैसे सब अरेंज करती है? इंडिया एक बहुत ही वास्ट कंट्री है, बहुत ही बड़ी कंट्री है, तो वो डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर कोई एक ही जगह से सेंट्रल से उसे चलाना। इसलिए उन्होंने वेरियस पार्ट बना दिए हैं, जैसे लेवल्स बना दिए हैं: लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल। लोकल लेवल गवर्नमेंट इज कंसर्न विद द अफेयर्स ऑफ विलेजेस एंड सिटीज़। जो लोकल गवर्नमेंट है वो छोटी सी सिटीज़ और विलेजेस को अफेक्ट करती हैं। स्टेट लेवल गवर्नमेंट डील्स विथ मैटर्स एट द स्टेट लेवल, एंड द गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क रिलेटेड टू द एंटायर नेशन। जो नेशनल लेवल की जो कमिटीज़ हैं वो जो एंटायर नेशन की जो प्रॉब्लम्स उसके लिए वो concern है। You have already studied about the local levels and will learn about the state government in the next unit. In the next class, you will learn about the national government, for example, central government or union government. The government and law. हमारी गवर्नमेंट और कायदा। The government frames laws and they must be obeyed by all citizens. Law and order is very important for the proper functioning of the government. The government has the authority to make as well as implement laws. We'll see the example. गवर्नमेंट ने एक ऐसा लॉ फ्रेम किया है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है सभी सिटीजन के लिए, और वो बहुत ही ज़रूरी है कि सभी सिटीजन द्वारा उसका पालन हो, तभी प्रॉपर गवर्नमेंट फंक्शन करेगी। गवर्नमेंट के पास ऐसी अथॉरिटी भी है कि वो लॉ को इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। लेट्स सी फॉर एन एग्जांपल। You must have a ticket while traveling by train. If you are caught traveling without a ticket, you have to either pay a penalty or go to jail. अगर आपके पास टिकट नहीं है और आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको पेनल्टी पे करनी होगी या तो आपको जेल जाना पड़ेगा। इवन दो द गवर्नमेंट में वर्क लॉफुली, इन केस सिटीजन फील्स द लॉ आर नॉट बीइंग executed properly, they have the right to raise their voice or even go to court. The court can order the government to take appropriate measures. Okay? अगर आप
कोई भी लॉ है और सिटीज़न को ऐसा लगता है कि ये लॉ प्रॉपर नहीं है, तो वो अपनी आवाज़ उठा सकते हैं और इवन वो कोर्ट तक जा सकते हैं, तो गवर्नमेंट एक पूरा अच्छा काम कर सके। Why can one not use loudspeaker in public places after 10 o'clock in the night? अभी नाइट में सभी सिटीजन्स अच्छे नहीं होते, किसी के घर में बूढ़े पेरेंट्स भी होते हैं, तो इसलिए वहाँ पे नाइट में लाउड स्पीकर अलाउड नहीं है। Now here you have two organs of the government. How the government organized? You must have realized that the organization responsible for the proper functioning of the country is known as the government. Therefore, the government is an essential organ of the nation and has a perform various functions. The government frames acts and laws and ensures their proper execution. It sees to it that laws is suitably interpreted, the implement, and also ensure that justice is done. The three arms of the government are legislative, the executive, and impart justice. The arm that frames laws is known as legislature, which comprises with Vidhan Sabha, and that which executes the law is called executive. The arm which works towards the implementation of justice is called judiciary, and it takes action against offenders. नाउ ऑर्गन्स, गवर्नमेंट के ऑर्गन्स वो कैसे काम करती है, किस हिसाब से काम करती है, तो कोई भी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जो कंट्री काम करती है उसे गवर्नमेंट कहते हैं। वो गवर्नमेंट के पास ऑर्गन्स है, वो वेरियस फंक्शन करते हैं, तो उसके लिए उसने एक प्रॉपर फ्रेमवर्क किया है लॉ एंड प्रॉपर एग्जीक्यूशन के लिए। एक लेजिस्लेटरी है विधानसभा, और दूसरा काम जो करती है वो एग्जीक्यूटिव काम करती है गवर्नमेंट से, जो लॉ एंड ऑर्डर को बराबर रखने के लिए। और उसके अगेंस्ट अगर किसी के पास कुछ काम हो, अगर किसी का झगड़ा हो गया हो, तो जस्टिस करने के लिए उसने जुडिशनरी भी अवेल की है, तो वो ऑफेंडर्स जो जिन्होंने गलत काम किया है उसके अगेंस्ट काम कर सके। Now India is a vast country made up of a union different states. The constitution has made India into union state for the smooth functioning of the administration. Thus India is a federal state. This means that the government function at two levels, central and state level. The government at the national level is called central or union government. It looks after the administration of the whole country. इंडिया एक बहुत ही बड़ी कंट्री है जिसमें उसका जो एक डिफरेंट स्टेट्स है, उसमें 29 तक स्टेट्स है, जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन सभी मिला के एक यूनियन बनाती है और उससे एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। इसे हम कह सकते हैं कि जो टू लेवल्स के थ्रू हमारी गवर्नमेंट चलती है, एक तो सेंट्रल एंड स्टेट लेवल। तो नेशनल लेवल है इज कॉल्ड सेंट्रल एंड यूनियन गवर्नमेंट, और जो पूरी कंट्री के बारे में देखता है, एंड द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल इज कॉल्ड स्टेट गवर्नमेंट। नाउ वी विल स्टडी मोर अबाउट द ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हियर। द लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ एन इंडियन स्टेट में हैव one or two houses. The lower houses is known as legislative assembly and the upper house is known as the legislative council. यहाँ पे हम वो जो ऑर्गन है उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा डीप में स्टडी करेंगे। जो लेजिस्लेटिव बॉडी है जो इंडियन स्टेट की, उसमें टू हाउसेस होते हैं। लोअर हाउसेस मीन्स लेजिस्लेटिव असेंबली, लोकसभा, और जो अपर हाउसेस है उसे लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं, उसे विधानसभा हम कहते हैं। ओके, द गवर्नर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। द स्टेट ऑफ गुजरात हैज़ ओनली द लोअर हाउस। मोस्ट ऑफ द स्टेट डू नॉट हैव अ लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो गवर्नमेंट है उसमें दो पार्ट है जिसे हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। तो गुजरात स्टेट की गवर्नमेंट है, उसमें लोअर हाउसेस मीन्स लोकसभा है। सो मोस्ट ऑफ द स्टेट डू नॉट हैव अ लेजिस्लेटिव काउंसिल। मोस्टली जो इंडिया में स्टेट है उसे लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। नाउ लेट्स सी दी बॉक्स। स्टेट गवर्नमेंट उसे चलाती है, उसमें गवर्नर देती है। जो गवर्नर है वो तीन पार्ट चलाते हैं, वो लेजिस्लेटिव बॉडी में भी काम कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडी में भी और जुडिशरी में भी। नाउ लेजिस्लेटिव बॉडी में कैसे फंक्शंस होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल।
एंड एग्जीक्यूटिव बॉडी में चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का वर्क होता है। और वैसे ही जुडिशरी में हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका कोर्ट के बारे में सब आता है। नाउ लेट्स सी द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज इट नेसेसरी टू हैव अ गवर्नमेंट? ये नेसेसरी क्यों है कि गवर्नमेंट होनी चाहिए? एवरी नेशन रिक्वायर्स द गवर्नमेंट टू टेक डिफरेंट डिसीजंस एंड ऑल्सो टू कैरी आउट डिफरेंट वर्क्स। सभी जो नेशन है, सभी जो राष्ट्र हैं, उसे एक गवर्नमेंट चाहिए जो कि पूरे देश की जनता के लिए प्रॉपर डिसीजन ले सके और सभी तरीके के वर्क कर सके। Of people in every nation, the government required to make laws according to the constitution and to make amendments in them. The government is required to implement the laws equally to all the people. In democracy, the government is necessary to run administration according to the wishes of the people. Only the government does public welfare works, thus to maintain peace and law and order, to enable the country's development. The government is required or necessary. देश की सभी जनता के लिए गवर्नमेंट बहुत ही रिक्वायर्ड है। अकॉर्डिंग टू लॉ, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो अच्छी तरीके से चलाने के लिए गवर्नमेंट सभी को चाहिए ही, जिसके थ्रू ही जो सभी जो राष्ट्र के सिटीजन हैं वो पूरे लॉ उनके बीच में इक्वली फॉलो किया जाएगा। तभी ही गवर्नमेंट अच्छी तरीके से वेलफेयर का वर्क कर सकेगी और एक जो कंट्री है वो डेवलपमेंट कर सकेगी। अगर हमारे ऊपर रूल करने वाला कोई नहीं होगा, कोई काम करने वाला नहीं होगा, तो हम कैसे पूरे नेशन का काम कर सकेंगे? दैट्स वाई गवर्नमेंट इज नेसेसरी। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट? हियर आर सेवरल फंक्शंस। नंबर 1, इट फॉर्म्स लॉज फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इम्प्लीमेंट्स देम। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें लॉ एंड ऑर्डर है उसमें उसको फॉलो भी करवाते हैं और उसमें इम्प्लीमेंट भी करते हैं। एट लार्ज इट रन्स एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग द विशेस ऑफ द पीपल और पब्लिक। जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पीपल के विश के थ्रू चलाना वो गवर्नमेंट वर्क करती है। इट कैरीज आउट सेवरल फंक्शंस ऑफ द पब्लिक वेलफेयर। इट रिजॉल्व्स सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ और इश्यूज। पब्लिक वेलफेयर का काम करती है और इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज को सॉल्व आउट करके देती है गवर्नमेंट। इट ट्राइज टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री एंड एलिमिनेट द अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी ऑफ द पीपल। इट्स ऑल्सो फंक्शन रिलेटिंग द एजुकेशन एंड हेल्थ। गवर्नमेंट हमेशा ही अपनी कंट्री की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बढ़ाने के लिए वर्क करती हैं और जो पब्लिक वेलफेयर के लिए पॉवर्टी लाइन से देश को ऊपर उठाने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट हटाने के लिए और एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर वर्क करती हैं। इट डिस्ट्रीब्यूट्स फूड, ग्रेन्स एंड अदर कमोडिटीज थ्रू द रेशन शॉप्स। इट हेल्प्स टू मेंटेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड हॉस्पिटल्स फाइनेंशियली। सभी नेशन के सिटीजन्स के तक फूड और ग्रेन्स पहुँचे उसके लिए रेशन शॉप बनाती हैं। देन एजुकेशनल एंड हॉस्पिटल्स फैसिलिटीज़ का प्रोवाइड करती हैं और उसे फाइनेंशियली हेल्प भी करती है। इट हेल्प्स द अफेक्टेड पीपल इन नेचुरल डिजास्टर। इट अरेंज फॉर जुडिशरी कोर्ट्स। इट मैनेजेस सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट, पोस्ट, रेलवेज एक्सेट्रा। इट ट्राइज टू मेंटेन पीसफुल रिलेशन विद फॉरेन कंट्रीज। तो गवर्नमेंट जो नेचुरल डिजास्टर, कभी देश के ऊपर कोई डिज़ास्टर होता है जैसे कि अर्थक्वेक, सुनामी, वैसे कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो अफेक्टेड पीपल को पब्लिक वेलफेयर फंड से हेल्प करती है। जुडिशरी कोर्ट उन्होंने अरेंज करती है गवर्नमेंट और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं और फॉरेन कंट्री से अच्छे रिलेशन बना के रखती है। द गवर्नमेंट फंक्शन टू मेंटेन पीस एंड लॉ एंड ऑर्डर एंड सीज द नेशन मेक्स प्रोग्रेस। गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपरली फॉलो सभी करे इसलिए वर्कआउट करती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट विल यू डू इफ द लॉज आर नॉट प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड एंड इनजस्टिस इज डन टू यू? आप क्या करोगे अगर जो कोई रूल है वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, वो अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है तो
और आपके साथ इनजस्टिस हुआ है तो उस समय आप क्या करोगे? If laws made by the government are not implemented properly and I am not justified, I will raise my voice against it. I will file the petition against the government in the High Court. The court can order the government to take proper actions to put laws into practice. अगर किसी लॉ से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है, तो मैं इसके अगेंस्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोर्ट में पिटीशन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट उसे ऑर्डर करेगा गवर्नमेंट को कि प्रॉपर एक्शन ली जाए और लॉ को अच्छी तरह प्रैक्टिस में रखा जाए. Why is not possible to administer the whole India from one place? एडमिनिस्टर के लिए एक प्लेस से पूरे कंट्री को चलाना पॉसिबल नहीं है. इंडिया इज़ अ लार्ज कंट्री. देयर आर 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज इन इट. If there is centralized administration, many problems can occur and people will have to face many hardships. Therefore, it is not possible to administer the whole India from one place. इंडिया एक बहुत ही वास्ट कंट्री है, बहुत ही बड़ी. जैसे ही मैंने आपको बताया कि पहले ही 29 स्टेट है और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, तो एक ही जगह से उसे गवर्न करना पॉसिबल नहीं है. इसलिए गवर्नमेंट ने स्टेट लेवल और लोकल लेवल की गवर्नमेंट भी रखी है तो वो सही तरीके से लॉ चला सके. नाउ मैच द फॉलोइंग प्रॉपरली. ग्राम पंचायत इज ज्वाइन विद प्रोवाइड स्ट्रीट लाइट्स इन विलेजेस. तालुका पंचायत इज affected to do construct roads between two villages. District Panchayat appoints teachers in primary school. State government contributes to the local self-government institute, and central government is at number 3 start new trains between two cities. So here our textbook exercise gets over. Watch this video carefully. Thank you very much.